Hello guys, welcome back to our channel The Wealth Designer. Today is 7th of December 2022 and as you all know we have launched our algo which is right now available on Cosmofeed app. Cosmofeed is an app that you don't need to download. आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है फ्री चैनल के ऊपर एंड बाय यूजिंग दैट लिंक यू कैन पे टू अस थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. You can also use EMI option through credit card and make payment to us. The cost will be 20,000 rupees per year and which will cost around 17 to 1800 rupees per month, which is very cheap and algo signals are very good and targets are very nice. और less signals हैं but targets are very good, risk reward is good, and if you will manage the proper money management, risk management, then you will make great amount of money from the stock market by using our algo. और एल्गो परचेज करने के लिए मैंने आपको बता दिया गया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो की और बाकी वीडियोस में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी है. एंड इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट यू कैन व्हाट्सएप मी, डीएम मी ऑन टेलीग्राम. आई विल गिव यू द लिंक. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आफ्टर दैट you have to download the TradingView application from your App Store or Play Store from Android phone, and you can use that application in iOS even. और TradingView डाउनलोड करने के बाद में आप जो है आपको लॉग इन करना पड़ेगा थ्रू जीमेल आईडी. आफ्टर दैट यू हैव टू गिव मी योर TradingView आईडी और वो आईडी देने के बाद में आई विल गिव यू द एक्सेस. एंड हाउ यू विल गेट द TradingView आईडी, जस्ट क्लिक ऑन the menu option. There is a menu option and in which there will be your photo. If you have uploaded your photo and all, just go to profile and like this is my TradingView ID. So this kind of ID you will get on your TradingView and you have to log in through Gmail in your application, or you can use this website TradingView on your laptop, PC or tablets, any kind of device. So once you will give me the TradingView ID, I will give you the access of TradingView. After that, you have to click on products and go to charts. And after that, you have to plot that algo on your charts. So how to plot the algo on the chart is very simple and basic. Just click on indicators and go to invite only scripts. And there will be two scripts available, which is TWD Algo 2.0 and TWD Algo. Just click on both and it will be automatically plotted on your charts. You have to make sure that there should not be any kind of extra indicators over there which is already plotted. So you have to remove those indicators because only 3 indicators you can use free of cost in TradingView. 2 are there which is our algo, and another one you can use whatever you want to use, but more than 3 you can't use. So this is how to plot the algo on TradingView chart. Now next part is how to use the algo for trading. So that is very simple. बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल जो है एक तरीका है एल्गो बेस पे ट्रेड करने का. जिस कैंडल में भी बाय का सिग्नल आ रहा हो, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओवर देयर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो दी 15 मिनट्स मिनिमम कैंडल. आपको जो एल्गो सिग्नल फॉलो करने हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करने हैं. any kind of stock, any kind of index, even Indian stocks, forex, pairs or cryptocurrency, you can analyze any kind of stock. और जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा स्टॉक को एनालिसिस करने का, उतने बड़े आपके टारगेट्स रहेंगे. लाइक इफ यू वांट टू डू द पोजिशनल ट्रेडिंग, you can use daily chart, and if there is a buy signal on daily chart, you can trade that also for positional basis. You can take option trade. In the money in option you have to take mainly. So first of all we will talk about 15 minutes intraday time frame. हम यूज़ करेंगे 15 minutes time frame for intraday trading. और अगर सिग्नल आता है, मैं आपको आज का जो एग्जांपल है वही देकर समझाता हूँ. आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ टुडे सिग्नल्स ओनली. ठीक है, बाकी आप लाइव इसको टेस्ट कीजिए, बेटर परफॉर्म करेगा लाइव मार्केट में, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. So like this, there was a buy signal in 15 minute time frame in Bank Nifty. But what we have to do is, हमें क्या करना है कि जो जिस कैंडल में सिग्नल आया है, इन विच कैंडल देयर इज ए बाय सिग्नल, वी हैव टू मेक श्योर कि हम ट्रेड तभी लें जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो नेक्स्ट कैंडल में. मींस जिस कैंडल में बाय सिग्नल है उसके नेक्स्ट कैंडल में वो हाई ब्रेक होना चाहिए. और ये जो कैंडल यूज कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है. जस्ट मार्क दी लेवल 43,322 वाज दी हाई. उसके बाद में 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ और 5 मिनट की एक कैंडल का वेट कर लो ऊपर इसके क्लोज होने का, जिस कैंडल में सिग्नल आया उसके नेक्स्ट कैंडल में.
अगर क्लोज होता है अप साइड में देन बाय एक्टिवेटेड, यू कैन गो फॉर बाय साइड। ओके, बट व्हाट हैपेंड इन दिस स्क्रिप्ट, बैंक निफ्टी में आज सिग्नल आने के बाद में क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और वहीं से ये रेजिस्टेंस फेस करके वापस आ गया, मतलब नो बाय एक्टिवेटेड टुडे, एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ सपोर्ट ओवर देयर डाउन साइड, तो सपोर्ट भी थे। एंड उसके बाद में सेल सिग्नल आया एट दिस लेवल, अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। इसका लो मार्क करो जिस कैंडल में सिग्नल आया है। इफ नेक्स्ट कैंडल will break the low of the previous candle in which signal was there, sell signal, you don't need to wait for 15 minutes closing in next candle। आप 5 मिनट की कैंडल का वेट कर लो, अगर वो नीचे क्लोज होती है देन गो फॉर ट्रेड, बिकॉज 15 मिनट क्लोज होने में टाइम लगेगा, बट यस इफ यू कैन वेट फॉर 15 मिनट्स कैंडल टू बी क्लोज्ड above the buy signal candle or closed below the sell signal candle, then targets will be big and premium decay will not be there। सो इस तरह से जो है आपको बाय और सेल को ट्रेड करना है। यू डोंट नीड टू ट्रेड कि जैसे ही सिग्नल आया आप उसमें बाय कर लो, ऐसा नहीं करना है। जिस कैंडल में सिग्नल आ रहा है, इन विच कैंडल सिग्नल इज कमिंग, यू हैव टू वेट फॉर क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल। जिस कैंडल में बाय सिग्नल आ रहा है आपको उस कैंडल के हाई ब्रेक होने का वेट करना है नेक्स्ट कैंडल में, देन एंट्री बनेगी। एंड सेम फॉर सेल साइड, अगर सेल साइड में सिग्नल है तो इसका लो मार्क करो, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, वो लो ब्रेक नहीं हुआ, सेल सिग्नल में एंट्री नहीं बनेगी। और दूसरी बात, ये आपके पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए गए हैं, आप इनको देख के जो है वो भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस के 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में सिग्नल आ रहा है तो मेक श्योर कि जो लास्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल हो एल्गो के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ही एंट्री ले। मान लो आपको बाय सिग्नल यहाँ पे आ जाता, इस कैंडल में आपको बाय सिग्नल आ जाता, आपका एंट्री बनेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज देयर इज ए रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस विल स्टॉप दिस स्टॉक टू गो अप। सो मेक श्योर टू टेक ओनली अबव दिस रेजिस्टेंस। बट अगर जैसे यहाँ पे आया है तो रेजिस्टेंस कोई नहीं था, नीचे सारे सपोर्ट नीचे थे, ऊपर रेजिस्टेंस कोई नहीं था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता तो आप इसको बाय कर सकते थे। सो नाउ यू विल थिंक दैट व्हाट विल बी द टारगेट। सो फॉर टारगेट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है, टारगेट के लिए आपको थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे शफल करना है। 30 मिनट्स में चले जाओ, 1 आवर पे चले जाओ, आपको वहां पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऊपर मार्क किया हुआ दिख जाएगा, दैट विल बी योर टारगेट। सो इस तरह से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे है ट्रेड करने का। अभी देखो अगर आप डेली टाइम फ्रेम चेक करोगे बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी इज ऑन सपोर्ट, सपोर्ट मेंशन है वहां पे। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हम लोग जो है वो सेल ऑन राइज के लिए नहीं जा सकते। वी आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन अबव द सपोर्ट इन बैंक निफ्टी स्पेशली। सो वी आर वेटिंग फॉर अप साइड मूव, या इसके नीचे क्लोज कर जाए फिर हम सोच सकते हैं कि हम डाउन साइड जा सकते हैं। अंटिल देर इज अ सपोर्ट ऑन बिगर टाइम फ्रेम यू हैव टू गो फॉर बाय साइड ओनली। मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल्स फॉलो करने। इफ ट्रेंड इज बुलिश गो फॉर बाय सिग्नल्स, इफ ट्रेंड इज बेयरिश गो फॉर सेल सिग्नल्स, एंड इवन यू कैन you don't need to bother about trend and all. If you are following the 15 minutes candle you have to wait for the signals and activation as per our criteria mentioned just before 2 minutes in this video as well। जो भी आपको क्राइटेरिया समझाया गया है, बाय सिग्नल है तो हाई ब्रेक होना चाहिए, सेल सिग्नल है तो लो ब्रेक होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड जहां भी होगा आपको 1% 1.5% के टारगेट जो है वो मिनिमम देखने को मिल जाएंगे। नाउ दिस वाज अबाउट इंट्राडे एंड द सेम थिंग इज अबाउट पोजिशनल एज वेल। सो अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, पोजिशनल आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, लाइक डेली टाइम फ्रेम मिनिमम होना चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल है आप वो बाय करके जा सकते हैं वो स्टॉक में। एंड आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, आप बड़े टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। मान लो ये बैंक निफ्टी है, सो बाय सिग्नल वॉज इन बैंक निफ्टी बहुत दूर था। देखिए बाय सिग्नल कहाँ पे था बैंक निफ्टी में, इन बैंक निफ्टी बाय सिग्नल वॉज अराउंड दिस लेवल, ओके दिस लेवल। सो इसका हाई था, एक्टिवेशन होना था बाय सिग्नल का अबव दिस लेवल 35,586, इसके ऊपर इसका बाय सिग्नल एक्टिवेट होना था। एंड व्हाट वाज द टारगेट, टारगेट वाज द दिस रेजिस्टेंस, दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस वाज द टारगेट। सो इस तरह से आप जो हैं एल्गो को पोजिशनली भी यूज कर सकते हैं एंड इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिगर टाइम फ्रेम बिगर रिजल्ट्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आर ऑलरेडी देयर। देखो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है स्टॉक जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, लाइक दिस
लाइक दिस एंड अगेन कमिंग डाउन, सपोर्ट है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि अभी के लिए सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी में। और बहुत लोग क्वेरी करते हैं कि सर बाय सिग्नल आने के बाद में हाउ टू टेक ट्रेड, कौन सा ऑप्शन ले, कैसे डिसाइड करें। सो ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। अगर कोई थोड़ा बहुत भी किसी को टेक्निकल्स क्लियर है, इवन नॉट टेक्निकल्स, अगर किसी को भी जो है हाउ टू बाय सेल, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अगर ये सब चीज़ें क्लियर है थोड़ी बहुत, तो बहुत सिंपल हो जाएगा उनके लिए ट्रेड लेना। बाय सिग्नल के बाद में आपको क्या करना है, लाइक दिस, बाय सिग्नल था, हमें बाय करना था अबव दिस लेवल 43,323। ओके, सो दिस वाज द प्राइस एंड व्हाट यू कैन डू इज, अगर यहाँ पे बाय एंट्री एक्टिवेट होती 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल ऊपर क्लोज होती, हम यहाँ पे बहुत सिंपल कर सकते थे, इन द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। बाय सिग्नल के बाद में कॉल ऑप्शन लेंगे, और कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे, लेना हमेशा इन द मनी ही है। 43,320 वॉज द प्राइस, आप 43,300 का कॉल ऑप्शन जो है ले सकते थे, या 400 तक भी जा सकते थे। तो इस तरह से ट्रेड करना। अगर यहाँ पे सेल एक्टिवेट होता तो व्हाट वाज द प्राइस अराउंड दैट टाइम, इट वाज अराउंड 43,000। तो अगर यहाँ पे सेल एक्टिवेट होता तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, 43,000 की पुट जो है वो बाय कर सकते थे। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सेम थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्टॉक, अगर किसी स्टॉक में भी है इस तरह का बाय सिग्नल, तो आप उसकी भी इन द मनी कॉल जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सो लाइक दिस इज अडानी ईएनटी चार्ट, 15 मिनट्स अडानी ईएनटी चार्ट। तो देखो बाय सिग्नल कहाँ पे आया, बाय सिग्नल आया इस कैंडल में। ओके, दिस कैंडल देयर वाज ए बाय सिग्नल। हमें क्या करना था, हमें जस्ट इसका हाई मार्क करना है, लाइक दिस, हाई मार्क किया, 3921 वॉज दी एंट्री। आप इसके ऊपर एंट्री ले लो, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपकी नेक्स्ट नीचे कैंडल की सपोर्ट का, वो मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस कैसे आपको डिसाइड करना है। पहले एंट्री की बात करते हैं। सो यहाँ पे एंट्री हो गया। सो आपको पता है कि अडानी कितना वॉलेटाइल स्टॉक है, और 15 मिनट्स में हमारे टारगेट जो है बहुत अच्छे आते हैं। सो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहता बाय एंट्री आने के बाद में, वो रहता है एटलीस्ट मिनिमम दिस 3970। 3970 ब्रेक किया, और आप ये देखिए कि कहाँ पे जाके सीधा इसने टच किया, टारगेट कौन सा दिया इसने, 4020, और जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मेंशन की गई है, और ये प्राइस के अकॉर्डिंग जो है मूव करता रहता है। सो यू हैव टू वेट टिल द फाइनल रेजिस्टेंस टच्ड बाय द स्टॉक। अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ और एक्टिवेट हुआ, तो मैक्सिमम टारगेट जब आपको दिखेगा वो आपको आ जाएगा। अगर 15 मिनट्स में टारगेट आपको नहीं दिख रहा है, आप 30 मिनट्स पे शिफ्ट कर जाओ, आपको कोई ना कोई वहां पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दिख जाएगा, वो आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरह से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक अडानी ईएनटी। अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना है, सो देर वॉज मच स्टॉक्स, अभी अभी ध्यान में नहीं है कौन से स्टॉक्स थे। रिसेंट स्टॉक आई रिमेंबर इज पॉलीकैब, जो कि अभी भी जो है वो चल रहा है, पोजिशनल ट्रेड में है, लाइक दिस। सो देर इज अ सिग्नल, अभी देखिए कि बाय यहाँ पे सेल सिग्नल आया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देर वॉज ए बाय सिग्नल इन पॉलीकैब, लेट्स रिमूव दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो देर वॉज ए बाय सिग्नल इन पॉलीकैब, बट द टाइम फ्रेम इज डेली। डेली टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल आया, इसका ब्रेक, अब बाय सिग्नल एक्टिवेट कब हुआ, इन दिस कैंडल। ओके, बाय सिग्नल एक्टिवेट हुआ इन दिस कैंडल, ये बड़ी कैंडल में। उसके बाद में स्टॉक देखो क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री बनता था, और पोजिशनल ट्रेड है ये, डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे नहीं बोल सकते, पोजिशनल ट्रेड रहेगा। आपको इन द मनी कॉल ऑप्शन अगर पीछे एक्सपायरी के लिए दिन बहुत बचते हैं तब ले सकते हैं, अदरवाइज फ्यूचर या कैश में इसको ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ले सकते हैं, फ्यूचर होल्ड रख सकते हैं। और अगर टाइम है एक्सपायरी के लिए, तो आप कॉल ऑप्शन भी जो है वो लेके जा सकते हैं, या आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी लेके जा सकते हैं, सेफर साइड। ओके, दैट विल बी योर कॉल। यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, अभी टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट आपको बताएगा TWD एल्गो 2.0। ओके, आपका बाय यहाँ एक्टिवेट होता है, आपका फर्स्ट टारगेट देखो क्या बताया एल्गो ने, आपका एल्गो ने फर्स्ट टारगेट बता दिया दिस वन। आपका बाय यहाँ पे एक्टिवेट हुआ अराउंड दिस लेवल 2390 या 2400। उसके बाद में फर्स्ट रेजिस्टेंस था 2450। स्टॉक 2450 गया, टच किया, हमारा टारगेट टच किया, वहां से वापस यू टर्न आया, अगेन कॉस्ट पे आया। अब यहां से यू टर्न क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर अगेन वापस गया, अगेन ब्रेकआउट दिया, एंड अगेन सेकंड टारगेट टच किया, और उसके बाद में अगेन फाइनल टारगेट टच किया। हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली बुक कर जाएंगे फाइनल टारगेट पे। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे टारगेट टच किया, टारगेट टच करने के बाद में वापस रिट्रेस हुआ, और कहाँ तक रिट्रेस हुआ, अगेन आर सपोर्ट तक, हमारी सपोर्ट तक, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस टच किया, एंड अगेन बैक टू सपोर्ट, अगेन अप, अगेन डाउन,
और फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद में सेल सिग्नल आया, और ये सेल सिग्नल आने के बाद में ये अभी तक जो है ये सेल सिग्नल एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम पे सेल सिग्नल है, सो वी नीड ए क्लोजिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम इवन बिलो दिस लो, तब सेल एक्टिवेट होता, बट यहाँ पे सेल एक्टिवेट हुआ नहीं। अभी क्या हुआ है, बाय एक्टिवेट हुआ है अगेन 3 days बैक ऑन 5th of December देयर वाज ए बाय सिग्नल इन पॉली कैप। ओके, और ये पोजिशनल है, डेली बेसिस पे बाय सिग्नल है। जैसे ये हाई ब्रेक किया है इसने, ये हाई ब्रेक होने के बाद में आज सस्टेन भी कर दिया ऊपर, सो इसके टारगेट जो हैं और भी बड़े निकल के आएंगे। सो ये अभी के लिए कैश में कुछ क्वांटिटी होल्ड है, मेरे पास भी है, हमारे सब्सक्राइबर्स के पास भी है। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ऑन पोजिशनल बेसिस। अब अगर बात करेंगे कि इसका टारगेट क्या रहेगा, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं डेली टाइम फ्रेम में, अभी इससे बड़ा क्या हम चार्ट को ओपन करेंगे टारगेट देखने के लिए। तो बहुत सिंपल है, आप कम से कम 2 से 3% के टारगेट जो है वो पोजिशनल में लेके जा सकते हैं, इवन 5% तक के। और इंट्राडे में इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओवर देयर इन इंट्राडे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद, ऐसा तो हो नहीं सकता वैसे कि 15 मिनट में आपको सिग्नल आ रहे हैं और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो बड़े टाइम फ्रेम पे, पर फिलहाल अगर होता है देन यू विल डेफिनेटली फाइंड दी प्रीवियस हाइज, और जो कि ओपन टारगेट रहेंगे। अभी अगर ये यहाँ से निकलता है तो पॉली कैप का अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, वीकली चार्ट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट मार्केट प्राइस से मंथली चार्ट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओवर देयर। सो इसका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीवियस स्विंग हाई का, मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई है, इसका ऑल टाइम हाई है, बाकी स्टॉक्स का नहीं होगा, जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा वो उसका टारगेट रहेगा, विच इज अराउंड 2860, एंड राइट नाउ प्राइस इज 2700। ओके, एंड आर एंट्री इज अराउंड 2696, सो ऑलमोस्ट एंट्री के करीब ही है, एंट्री प्राइस के करीब ही है, बट टारगेट बहुत बड़े हैं। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, फिर इसका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल रहेगा, जिस कैंडल में बाय सिग्नल आया है उसके नीचे जो फर्स्ट और सेकंड अवेलेबल सपोर्ट है, आप उसके नीचे जो है टारगेट लगा के रखे। इट विल बी अराउंड लाइक दिस, इन दिस कैंडल देयर वाज ए बाय सिग्नल, सो योर स्टॉप लॉस कैन बी लाइक दिस, ग्रीन लाइन के बिलो जो आपका जो है वो स्टॉप लॉस रह जाएगा, विच विल बी अराउंड 2630 2640। थोड़ा बफर दे के रखिए स्टॉप लॉसेज में, ताकि स्टॉप लॉस हिट करके वापस स्टॉक चला जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन एल्गो, इवन पोजिशनल, इंट्राडे, एंड देर विल बी सिग्नल्स लाइक जैसे सेल है, सेल का सिग्नल आया, बहुत बोलेंगे सेल का सिग्नल आया, ये स्टॉक ऊपर चला गया, इंट्राडे में सेल का सिग्नल आया, बैंक निफ्टी ऊपर चली गई, बट सेल सिग्नल आया है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। सेल सिग्नल हमें कोड्स दे रहे हैं, भी यहाँ पे सेल बन रहा है, बट वो बना नहीं, वहाँ पे बायर्स जीत के और वापस चला गया, हमें एंट्री लेनी है ओनली लो ब्रेक होने के बाद में। ओके, सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग एल्गो, हाउ टू यूज़ और कैसे करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, बहुत सिंपल है, आपको इन द मनी लेना है। अगर 43,500 पे बाय सिग्नल आ रहा है देन ऑब्वियसली यू विल ट्रेड दी 43,500 सीई, अगर 43,000 के करीब सेल सिग्नल आ रहा है सो यू विल ट्रेड दी 43,000 put option. So this is how you can trade, you can use the algo. And if you still have any kind of query, any kind of suggestion, any kind of important note you want to like send to us that we need some kind of changes in this, if you think that we can do some changes in this algo, I don't think any kind of changes will be there, but yes, if we will like any kind of suggestions are always welcome. अगर इसी का suggestion अच्छा लगेगा तो definitely we'll consider that, but according to us this algo took a lot of time to make, and we have completed our algo, and now it's your turn to purchase it and use it and make money from this. So with that said, bye bye, take care and have a safe trading.